عبادت کے دوران ہم نے ایک معاشرتی اور اخلاقی حوالے سے ایک برائی کو اپنے سامنے رکھا، اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور معاشرتی برائی کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ آج کے لیے ہمارا مضمون ہوگا فالس انفارمیشن، جعلی معلومات، لفظی معلومات، یعنی ایسی انفارمیشن جو صداقت پر مبنی نہ ہو۔ اور میں چاہوں گا کہ ہم اپنی اس سیریز میں آگے بڑھتے ہوئے آج خدا کے کلام کو اس طرح سے لیں کہ ہم اس معاشرتی برائی سے آج کے دن میں چھوٹ جائیں، بچ جائیں۔ اور آج جب ہم خدا کے گھر سے جاتے ہیں تو عہد کر کے جائیں کہ ہم کم از کم اب ایسا نہیں کریں گے۔ تو پھر میرے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ جعلی معلومات، لفظی معلومات، ایسی معلومات جو شاید جھوٹ پر مبنی ہوتی۔ خدا کے کلام کی آواز کیا ہے؟ آئیے پھر سے خدا کے کلام کی آواز کو سن لیں۔ لکھا ہے، مگر کتوں سے مراد وہ تمام کے تمام لوگ جو دوسروں پر بھونکتے ہیں۔ یہاں ان کی نشاندہی کی گئی، مگر کتے، جادوگر، حرام کار، خونی، بت پرست، اور اگلی بات جو بڑی اہم ہے جو ہمارے مضمون کے عین مطابق ہے، ہر جھوٹی بات کا پسند کرنے اور گھڑنے والا، ہر جھوٹی بات کا پسند کرنے اور گھڑنے والا دونوں بادشاہی کے باہر رہیں گے۔ وہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی وہاں کا نیشنل ہونا چاہتا ہے تو پھر رولز، ریگولیشنز، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یہ ہیں کہ ہم کم از کم ان برائیوں سے بچیں۔ اور اگر ہم ان برائیوں سے نہیں بچیں گے تو پھر ہم وہاں کے نیشنل نہیں ہوں گے، وہاں ٹکنے کے لائق نہیں ہوں گے۔ میڈیا کے حوالے سے میں خدا کی شکر گزاری بھی کرتا ہوں، لیکن میں اس بات کا اقرار بھی کرتا ہوں کہ میڈیا کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہم بہت زیادہ تنزلی کی طرف بھی گئے ہیں۔ میڈیا کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہم تنزلی کی طرف بھی گئے ہیں۔ میڈیا نے دو بڑے برے کام کیے۔ ایک تو انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو میڈیا فیک نیوز جو ہیں ان سے بھرا ہوا، اور ایک میڈیا نے ہمیں ہر 2 منٹ کے بعد بریکنگ نیوز کا عادی بنا دیا۔ ہر 2 منٹ کے بعد یہ سلائیڈ چل رہی ہوتی ہے، بریکنگ نیوز، اور ہم بریکنگ نیوز کے عادی ہو چکے، فیک نیوز کے ہم عادی ہو چکے، اور میں کہوں گا کہ ہم عادی ہو چکے ہیں بغیر تحقیق کیے، بغیر تصدیق کیے ہم کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ نہ ہم تصدیق کرتے ہیں، نہ ہم تحقیق کرتے ہیں، نہ ہم ریسرچ کرتے ہیں، نہ ہم توما کی طرح انگلی ڈالتے ہیں، ہم خواہ مخواہ میں ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں، اور ہم اسی بات کو آگے ٹرانسفر کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ ایک ایسی معاشرتی برائی ہے جس کی روک بڑی ضروری ہے، کیونکہ اس برائی نے خاندانوں کے خاندان تباہ کر کے رکھ دیے، اور ہمیں اس برائی سے بچنا ہوگا۔
एक बात मेहरबानी से नोट कर छोड़ेंगे, मेरे और आपके इर्द गिर्द दो तरह के मसीही बसते हैं। मेरे और आपके इर्द गिर्द दो तरह के मसीही बसते हैं। एक वो है जो ज़बूर की किताब के 15वें ज़बूर की रोशनी में अपने पड़ोसी की बुराई सुन नहीं सकते। 15वें ज़बूर में हमारे जो दोस्त इंडिया से हैं, वहां बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है, लिखा है, मुबारक वो है जो अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता। मुबारक वो है, खुदा के हाथ पसंदीदा वो है, खुदा का फेवरेट वो है जो किसी की निंदा नहीं करता, किसी की बुराई नहीं करता, और जो किसी की बुराई को सुन नहीं सकता। और अगर कोई बुराई कर रहा हो तो वो फौरी तौर पर डांटता और कहता है, भाई जी, बहन जी, अपना मुंह बंद रखें, क्योंकि आपके मुंह में इस वक्त मुझे इब्लीस दिखाई देता है। आप इब्लीस का रोल प्ले कर रहे हैं, आप इब्लीस का रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए कि आपके मुंह में मुझे इब्लीस दिखाई देता है। तो पहले तो सिस्टर शाली वो मसीही हैं जो 15 ज़बूर के मुताबिक अपने पड़ोसी की, अपनी किसी बहन या भाई की निंदा नहीं करते, उसकी बुराई सुन नहीं सकते। और दूसरे किस्म के मसीही वो हैं जो इस ताड़ में रहते हैं कि हमें कोई बुराई मिले। दूसरे किस्म के मसीही वो हैं जो इस आश्रय में रहते हैं कि कहीं से कोई इतनी सी बात भी मिल जाए, फिर देखो मैं अदा करना की। ये जो बड़ा अच्छा बनने की एक्टिंग करते हैं, ये जो बड़े अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, ये जो अपने आप को बड़ा सच्चा और खराब किस्म का पेश करते हैं, इतनी सी बात मुझे मिल जाए, फिर मैं बताती हूं कि ये असल में है क्या। ये दो तरह के लोग आपको हमारे खानदानों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारी कम्युनिटी में और हमारी कंट्री में दिखाई दे। दो तरह के लोग। अब मुझे और आपको आज खुदा के लोग होने के नाते यहां ये फैसला करके जाना होगा कि मैं और आप इनमें से कौन से हैं। अपने पड़ोसी की बुराई सुनते हैं, सुनना पसंद करते हैं, या कि पड़ोसी के हवाले से कुछ कहा जाए तो आप उस पर रोना धोना शुरू कर देते हैं, घुटनों के बल हो जाते हैं और खुदावंद से ये दुआ करते हैं कि खुदावंद, हकीकत क्या है तू ही जानता है, और जो हकीकत है तो उसी के मुताबिक इस भाई, इस बहन, इस खानदान की मदद कर। ये बाइबल का तरीका है। गल कहती है तू मैनू मुंहों कट, मैं तेनों मत्थेों कट देना। और कुछ लोगों की आदत होती है, आगे चलकर मैं बयान करूंगा, बड़ा सख्त कलाम है आज का, बहुत सख्त किस्म की बातें बाइबल मुकद्दस में लिखी हुई आज हमारे इसी मजमून के हवाले। लेकिन इब्तदाई तौर पर मैं यही कह रहा हूं कि हमें बगैर तहकीक के, बगैर रिसर्च किए, बगैर जायजा लिए किसी के बारे में किसी तरह की कोई राय कायम नहीं करना और किसी की किसी बात पर यकीन भी नहीं करना। हमें तहकीक करनी है, रिसर्च करनी है, जांच पड़ताल करनी है और उसके बाद हमें किसी नतीजे पर पहुंचना है। बाइबल क्या कहती है? बड़ी खूबसूरत बात बाइबल मुकद्दस में लिखा है, हम सुनने में तेज लेकिन बोलने में धीरे हों। सुनने में तेज हों लेकिन हम बोलने में धीरे। अच्छा, एक और एंगल से जरा आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया का दौर है ना, तो लोगों ने जाली किस्म के अकाउंट्स भी बनाए हुए। तस्वीर किसी लड़की की लगाई हुई तो पीछे शरारती कौन है? उनके जेवर का बाबा, जड़ा लिख के टेस्ट लैन दे।
तस्वीर किसकी लगाई हुई है? किसी खातून की, किसी मॉडल की। और पीछे कौन है? इस जाली अकाउंट ने तो मर्दों की शादियां करवा दी हैं। इस जाली अकाउंट ने तो उनकी शादियां करवा दी हैं जो ना मेल है ना फीमेल है, बल्कि शीमेल है। उनकी भी शादियां करवा दी। इस जाली अकाउंट ने तो खानदानों और घरानों का, और मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा, आज की नौजवान नस्ल का सत्यानाश करके रख दिया हुआ है। जाली अकाउंट। हम कई बार कहते हैं ये मेरा फेसबुक फ्रेंड है, और कभी फेसबुक में फ्रेंड्स होते हैं। ये मेरा ट्विटर का ना फ्रेंड है, इसके साथ मैं अपनी तस्वीरें शेयर करता हूं। कहा ध्यान कर लेगा, कहा तो छोड़ेंगे। ये मेरा व्हाट्सएप फ्रेंड है, ये मेरा स्कूल फ्रेंड है, ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है, ये मेरा यूनिवर्सिटी फ्रेंड है। अच्छा, मैंने ये सीखा है अपनी जिंदगी के इस हिस्से में, क्योंकि मेरा तो सिर्फ एक ही फ्रेंड है पूरी जिंदगी में। 57 साल की उम्र में सिर्फ एक ही दोस्त बनाया है, सिर्फ एक ही दोस्त, और वो है डॉक्टर नासिर निसार सोतरा। कोई और नहीं, सिर्फ एक, सिर्फ एक। क्योंकि मैंने अपने टीचर्स के जरिए से ये सीखा कि जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं। अरे भाई, दोस्त को आप समझते नहीं है दोस्त है क्या है। दोस्त बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो भाई से भी बेहतर है, वो भाई से भी बेहतर है। दोस्त का मतलब है आपका हम नवाला, हम प्याला, कोई एक ऐसा जिसके साथ आप खुदा के बाद हर एक बात कर लेते हो, और हर बात हर शख्स से नहीं की जाती, हर बात हर शख्स से नहीं की जाती, क्योंकि हर शख्स जो है वो पर्दा नहीं रखने वाला। तो फिर हदायत क्या है, खुदा के कलाम की नसीहत क्या है? सुन लें। बिल्कुल वही लफ्ज कोट करने लगा हूं जो बाइबल मुकद्दस में है। मुझे और आपको कहा गया है कि हमारी गुफ्तगू में पहली बात सफाई, दूसरी बात सच्चाई, और तीसरी बात सेहत कलामी पाई जानी चाहिए। हमारी गुफ्तगू में पहली बात सफाई, दूसरी बात सच्चाई, और तीसरी बात सेहत कलामी पाई जानी चाहिए। अपने घरों में जाकर तीतस का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 6ठी, 7वीं और 8वीं आयत को देख लीजिएगा, यही लिखा। अब तीतस के खत में ये बताने की कोशिश की गई है कि आखिर जमाने में ऐसे लोग होंगे, हर एक झूठी बात को पसंद करने वाले और घड़ने वाले लोग होंगे। एक लंबी लिस्ट दी गई है तीतस के दूसरे बाब में, अपने घरों में जाकर देखिए। आखिर जमाने में ये सब कुछ होगा। क्या लिखा है? अब जरा बातें सख्त हैं, लेकिन खुदा के लिए हजम कीजिएगा। ये अंदर जाएंगी तो शहद बन जाएंगी, मुंह में शायद ये कड़वी लगे, लेकिन अंदर जाएंगी तो ये शहद बन जाएंगी। ये मेरी नहीं, मुकाशवा की किताब की बात है। मुझसे कहा गया कि किताब ले, और जब मैंने वो किताब ली तो मुझे मेरे मुंह में बड़ी कड़वी लगी, लेकिन जब वो नीचे उतरी तो वो शहद से ज्यादा मीठी थी। अब सुने भाई, पहली बात, आखिर जमाने में ऐसे लोग होंगे जो घरों घरों में जाकर, वेले लोग जो घरों घरों में जाकर दबे पांव घुसकर इधर उधर की बातें करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई और बात तो है नहीं, कोई मतलब की बात तो है नहीं, कोई प्रोडक्टिव टाइप की बात तो है नहीं, कोई इस्लाही तौर पर तो कोई बात है नहीं। यही बातें हैं, वो इधर उधर की बातें करेंगे, घरों घरों में जाकर करेंगे, दबे पांव घुसकर करेंगे, और हक की पहचान तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे। कहां लिखा है? 2 तिमोथियस
3 बाब और उसकी 6, 7 और 8 आयत। अब ये कौन लोग होंगे, ये कौन ऐसा करेंगे? 2 तीमुथियुस 3 बाब की 8 आयत में लिखा है, ये वो लोग करेंगे जिनकी अकल बिगड़ी हुई है। ये बिगड़ी अकल के लोग, अकल से खाली, पैदल, सिफर। ये वो लोग होंगे जिनकी अकल बिगड़ी हुई है, जो वेले हैं, जो घरों घरों में जाकर दबे पांव घुसकर इधर उधर की बातें करेंगे, लोगों को डिस्कस करेंगे, लोगों की बातें करेंगे, लोगों के बारे में बातें शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई और काम है जो नहीं। ये वो लोग हैं जिनके बारे में पहले तीमुथियुस के 5वें बाब की 12वीं, 13वीं, 14वीं आयत में लिखा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने बेकार रहना सीख लिया हुआ है। बाइबल में यही लफ्ज है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बेकार रहना सीख लिया। अब जिनके पास काम धंधा है, उन्होंने तो सिर को जान दी जगह नहीं, उन्होंने की किसी ना जाके बैठे तो की गॉसिप करना है, उन्होंने टेलीफोन पे भी दुनिया को गला करनी है। और पूरी कलीसिया गवाह है, मैं बगैर किसी मकसद के कभी किसी को फोन नहीं करता। ये मेरी आदत है, बगैर मकसद के मैं कभी किसी को फोन नहीं करता, इवन के चर्च कमेटी के दोस्तों को भी नहीं करता। ये 4 लोग बैठे हैं, ये मेरी आदत है। काम होगा, मकसद होगा, जरूर फोन करूंगा, वरना मैं फोन भी नहीं करता। हाँ, मैं हर सुबह उठकर आपके लिए चूंकि दुआ कर लेता हूं, इसलिए मेरा यकीन होता है कि आप खुदावंद में सलामत हैं। और अगर कोई मुझे फोन करे भी तो अब कलीसिया के लोग जानते हैं कि मैं सिर्फ 1 आध मिनट में जान छुड़ाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं और मैंने ये सीखा है अपनी जिंदगी और तजर्बे से कि ये फोन सिर्फ यस नो के लिए है, लंबी लंबी कहानियां सुनने के लिए नहीं। आपने लंबी कहानी सुनानी है तो फिर टाइम लेकर मेरे पास आ जाए या मुझे बुला लें, मैं नहीं खाम में अपना कान गर्म कर दूं। और कुछ दोस्तों ने इस हफ्ते के दौरान मुझे मिस कॉल्स देने शुरू की। मैंने एक बंदे को बर्दाश्त कर करके फिर मैंने इस हफ्ते के दौरान फोन किया और मैंने कहा, भाई आप पाकिस्तान में नहीं? मैंने कहा मुझे बेवकूफ समझते हैं? नहीं। तो मैंने कहा मिस कॉल क्यों करते हैं? मैंने कभी किसी मिस कॉल का जवाब नहीं दिया और ना मैं देना चाहता हूं। मिस कॉल का मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? आप दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं और दूसरे को बेवकूफ समझते हैं। आप अपना क्रेडिट बचा रहे हैं और दूसरे का इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्यों? मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी मिस कॉल का जवाब नहीं दिया, मैं नहीं देता। हाँ, ये मेरी आदत है और कलीसिया जानती है, कॉल मुझसे मिस हो जाए, इबादत में हूं तो फिर मैं कॉल बैक जरूर करता हूं, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी किसी मिस कॉल का जवाब नहीं दिया और ना दूंगा, कभी नहीं दूंगा। कुछ जिंदगी के असूल बना लें, बेकार लंबी लंबी हांग। अरे टाइम ही नहीं है भाई, यहां बीवी और बच्चों के लिए टाइम नहीं है, सारा दिन पढ़ते रहते हैं, अब आपकी तकरीरें सुनते रहे, इतना टाइम कहां? और इतना टाइम अगर मैं दूसरी चीजों में लगाऊंगा तो फिर मैं जो खिदमत सरंजाम दे रहा हूं, जो हर सुबह मुझे काम करना है, वो काम मैं कैसे करूंगा? तो जिंदगी के बच्चे जो इतने बैठे हैं, कुछ असूल बनाएंगे, कुछ असूल बनाएंगे। बेकार और वेले रहना ना सीखें, बेकार में किसी के पास जाकर बैठने से गुरेज करें। ये वक्त बहुत कीमती है। मैं नहीं कह रहा, ये अजीम किताब कह रही है वक्त कीमती है, इसकी कदर करें। क्योंकि अगली बात बड़ी डेंजर है जो इस आयत को मुकम्मल करती है, और वो डेंजर बात क्या है? वक्त कीमती है, इसकी कदर करें क्योंकि दिन बुरे हैं। यहां आयत ये मुकम्मल करती है। तो ये कौन लोग हैं? ये वो हैं जो घरों घरों में घुसकर
घुस कर इधर उधर की बातें करते हैं, जो हक की पहचान तक कभी नहीं पहुंच सके। ये वो हैं जिनकी अकल बिगड़ी हुई है, ये वो हैं जिन्होंने बेकार रहना सीख लिया है। और अगली बात और ज्यादा डेंजर है, पहले तीमुथियुस के 5वें बाब की रोशनी में, ये वो लोग हैं जो शैतान के पैराव हो चुके। क्योंकि शैतान हमेशा झूठ बोलता है, वो झूठों का बाप है, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, वो झूठ को पसंद करता है। इसलिए मेहरबानी से एक ही वक्त में किसी एक की पैरवी करेगा। और आखिर में दो बातें कहकर खत्म करूंगा। खुदा के लिए जब आप आज के मजमून को ज़हन में रखे हुए हैं तो अहद की 2 तख्तियों को भी ज़हन में रखें। अहद की 2 तख्तियां, एक पर 4 हुक्म, एक पर 6 हुक्म। ये दोनों तख्तियां क्या सिखाती हैं कि हमें खुदा के साथ अपने मामलात में सीधे सीधे, और हमें मुआशरे में रहते हुए अपने मामलात में एक दूसरे के साथ सीधे सीधे रहना है, सीधे सीधे। देखें, फिर से मैं आपको इस तरफ ले आता हूं। इसका मुंह भी काला है। अच्छा, अभी तो मेरे बेटे की पोते की तस्वीर आ गई। ये वैसे है काला, हर मोबाइल काला ही है, और ये काले मुंह वाला इतना बुरा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुंह ही काला है तो हरकतां भी काली होनी है। इसने पकड़कर खानदानों के खानदान तबाह कर दिए। इसने पकड़कर खानदानों के खानदान में लड़ाई झगड़े पैदा कर दिए। इसने खानदानों के खानदान जो हैं उनको पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया है। ये काले मुंह वाला है। इसका इस्तेमाल मेहरबानी से अच्छे तौर पर करें। और मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा, और मैं कोई अगर आईटी का कोई बंदा यहाँ पर हो वाइजल है तो कहूंगा कि इस बार फैमिली सर्विस पर हमें यह तो सिखा दें कि हमें इसका इस्तेमाल करना कैसे है। हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, अभी तक हमें इसका इस्तेमाल ही नहीं आता। दे टेक्स्ट मैसेजेस, दे तस्वीरें, अच्छा देखते भी नहीं है। आप यकीन माने, कभी मेरे पास आए तो मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ ऐसी तस्वीरें मुझसे लोग शेयर करते हैं जो मैं देखकर शर्मिंदा हो जाता और सोचता हूं कि यार बतौर पादरी ये तस्वीर मुझे भेजनी चाहिए थी कि नहीं। आप पादरी को तस्वीर भेज रहे हैं, आप पादरी को ये लतीफा भेज रहे हैं, आपको भेजना भी चाहिए था कि नहीं भेजना चाहिए था। तो यार मैं पादरी हूं, मेरे साथ पादरियों वाली हरकत करें, मेरे साथ पादरियों वाली हरकत करें ना भाई। वो पादरियों वाला मुझे मैसेज भेजें, आप मुझे लतीफे भेज रहे हैं, आप मुझे उल्टी सीधे तस्वीरें भेज रहे हैं। इसीलिए व्हाट्सएप टीम ने 2 बार मेरा फोन जो है, मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया। उन्होंने कहा कि 48,000 लोग आपके साथ इसमें हैं, अब एक एक तस्वीर भी रोज भेजें तो 48,000 तस्वीरें आती हैं। अच्छा, कईयां की आदत है एक तस्वीर तो रुकते ही नहीं, उन्होंने 3-4 कट्ठियां भेज रही। पादरी साहब तेरा फोन ते व्हाट्सएप असा ब्लॉक करवा के रहे, छटना नहीं थे। फिर मुझे सोफिया की जो यहाँ की डायरेक्टर है, फिर उस बेचारी को मुझे मेल लिखनी पड़ती है, सोफिया से मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि अच्छा ठीक है, मैं इसका कोई हल निकालता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ एडमिन्स बना दूँ, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दूँ, ताकि डायरेक्टली मुझ पर तस्वीरें ना फेंकी जाएं और ना इस किस्म की चीज़ें मुझसे शेयर की जाएं। तो कई बार हमें इसका इस्तेमाल नहीं आ रहा, और इसके इस्तेमाल की वजह से खानदानों में बहुत झगड़ा है, बहुत झगड़ा, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ। अहद की 2 तख्तियां याद रखें। हमें खुदा के साथ भी, हमें एक दूसरे के साथ भी सीधा सीधा होना है। आखिरी बात कहूं, बहुत ज्यादा जब आप इस पर लंबी लंबी बातें करते हैं ना, तो फिर मेरी ये अजीम किताब कहती है, बहुत बोलना खता से खाली नहीं है। बहुत बोलना खता से खाली नहीं है। और ये काले मुंह वाला इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करता है कि हद नहीं है। मियाँ बीवी रोज ही लड़ते हैं। आप यकीन माने वो फोन छोड़ दें, उनकी लड़ाइयाँ खत्म हो जाए, लेकिन इस फोन ने
मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा की। चलिए खत्म करते हैं। क्या लिखा है? हर एक झूठी बात का पसंद करने वाला और घड़ने वाला दोनों बाहर। तो फिर आज सबसे पहले ये पैगाम मेरे लिए था, सबसे पहले मेरे लिए, और फिर उसके बाद आप बच्चों के लिए था कि हमें आज अपने इस मज़मून पर रहते हुए इस मुआशरती बुराई से अपने आप को बाज रखना है। इस मुआशरती बुराई से अपने आप को सबसे पहले मैंने और फिर आपने बाज रखना है। और ये कैसे होगा? ये बिल्कुल इसी तरह से होगा जब हम कंट्रोल करेंगे, जब हम कंट्रोल करेंगे। अब कोई ये कहे कि भाई साहब मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, मैं तो एडिक्टेड हो चुका हूं, तो फिर मैं इसी किताब को दरमियान में लाऊंगा और कहूंगा आप मुकद्दस पौलुस की तरह क्यों नहीं ये कह सकते कि मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। कौन सी एडिक्शन है जो नहीं खत्म हो सकती? बल्दिया टाउन पेरिश तक शाम मैं सिगरेट पीता था और कलीसिया की किसी बंदे को पता नहीं था। आप मेरे घर में भी आते रहे, आपको भी नहीं पता होगा। आपने मेरे घर में बचपन गुजारा है। सिल्विया बल्दिया टाउन का। एक दिन पाकिशाह की इबादत में मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार था और मेरी बेटी अनीता जो है वो मेरे सामने खड़ी हो गई। बहुत छोटी बच्ची थी वो। उसने मुझे नैयर शर्मिंदा कर दिया। उसने कहा, डैडी इन्हीं हाथों से आपने रोटी तकसीम करनी है, इन्हीं हाथों से अभी आपने सोटा लगाया है। फिर नैयर मैंने 3 महीने तक पैकेट्स ला के ना अपने सामने रखे और मैंने पैकेट्स को कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब छोड़ना है तो बिल्कुल छोड़ना है, हाथ तक नहीं लगाना। बात एक कश से शुरू होती है, बात एक पैक से शुरू होती है, बात एक सूटे से शुरू होती है और फिर रुकती नहीं। लेकिन राज फिर मैं कहूंगा, मैं और आप अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद यीशु मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। वो क्या है जो मैं और आप नहीं कर सकते? वो क्या है जिसकी मैं और आप रोक नहीं लगा सकते? तो आज वादा करके जाएं, फॉल्स किस्म की कोई न्यूज आगे ट्रांसफर नहीं करनी। आज वादा करके जाएं, गलत किस्म की इंफॉर्मेशन पास नहीं करनी। कोई बात करे भी तो उसे अपने पास रख लेना है, अपने नेबर की, अपने भाई, अपनी किसी बहन की निंदा नहीं करना। अगर हम खुदावंद के फेवरेट होना चाहते हैं, अगर हम खुदा के पसंदीदा होना चाहते हैं, अगर हम मुबारक होना चाहते हैं, तो फिर इस मुआशरती बुराई पर हमें गालिब आना है। आइए दुआ करें। मेरे खुदावंद, मैं तेरे कलाम की गहरी और गहरी बातों के लिए